अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबलाए मौला बैनुल हरमैन अय्याम सर्दी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत की गर्मी मोमिनीन को करबलाए मौला की तरफ जौक दर जौक लेकर आ रही है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर मुश्किल में हमारा आसरा है, हर दुआ की कबूलियत का सबब है। दुनिया व आखिरत में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हम इज़्ज़त हासिल कर सकते हैं। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यिदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वली अमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلا معلیٰ کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور ہفتے کا دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا دن ہے، اور آج ہم مولا کی بارگاہ میں مہمان ہیں۔ 28 ربیع الثانی 1443 ہجری ہے، اور 4 دسمبر 2021 عیسوی ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 725 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ نوحہ خان سید عباس ممبئی سے، انڈیا سے، اور شاعر اہل بیت علیہم السلام نوحہ خان علی عباس علوی صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت خان میر زین العابدین بخاری صاحب لاہور پاکستان سے۔ خداوند متعال کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے چند لحظے اور عنایت فرمائے، اتنا ہی کم ہے۔ نعمت بڑی ہے، شکر جتنا کیا جائے کم ہے، لہذا اس نعمت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ یاد آئیں گی حسرت بھری محفلیں اس وقت جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہمیں ان محفلوں کے ثواب کا پتہ چلے گا، تو اس وقت ہم کہیں گے کاش ان محفلوں سے ہم لمحے بھر کے لیے بھی دور نہ ہوئے ہوتے، کیونکہ ہر محفل، ہر ذکر اہل بیت علیہم السلام کا اتنا اجر دیکھیں گے کہ ہم چاہیں گے کہ یہ درجات ہمیں مزید حاصل ہو جاتے، کہ اتنے آسان تھے یہ درجات حاصل کرنا۔ اسی وجہ سے زیارت عاشورہ کے بارے میں بھی مختلف علماء سے خوابوں کی صورت میں بھی اور ثواب اور فضیلت کی صورت میں بھی یہ چیزیں وارد ہوئیں کہ جس طریقے سے وہ مومن شخص جو کہ زیارت میں حج کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں گم ہو گئے، تو معصوم علیہ السلام نے ان سے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی: زیارت جامعہ، زیارت عاشورہ اور نافلہ لیل کی، یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا، تو ان میں بھی زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ تاکید آئی، اور اسی طریقے سے زیارت جامعہ کی بھی بہت زیادہ تعبیر آئی۔ زیارت جامعہ کافی ساری وارد ہیں، جن کے اندر سے 6 مشہور ہیں، لہذا آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو توفیق دے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو ہمیشہ عام کرتے رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان سید عباس صاحب ممبئی انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مولا مدد۔ عباس علیہ السلام کی شان میں کلام پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ لگا دے جو بنا تلوار ہی انبار لاشوں کے، لگا دے جو بنا تلوار ہی انبار لاشوں کے، جو پے کر ہے
شجاعت کا اسے واہ 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 عباس کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی واہ اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا واہ اسے عباس کہتے ہیں. واہ واہ واہ. جو پتھر پر علم گاڑے واہ اسے کہتے ہیں سب حیدر. واہ جو پتھر پر علم گاڑے واہ اسے کہتے ہیں سب حیدر. واہ علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں. واہ واہ واہ. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. جسے سجدے کرے سجدہ جی واہ واہ. اسے عباس کہتے ہیں. واہ. مولا اصغر علیہ السلام کی شان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں, سماعت بسم فرمائیں. اللہ عنایت. بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. واہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر. حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج عظیم. غرور کرتی تھی جس حرملا پہ فوج عظیم. اسی پہ رن میں ہنسا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے. قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے. قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا اصغر. بڑے بڑوں سے جو مانگنا ہے تو جھولے کی سمت آ جاؤ. جو مانگنا ہے تو جھولے
कि सिमत आ जाओ, अमीर करबो बला है हुसैन का असगर, बड़े बड़ों से यजीदियत को खिलौना बना के झूले में, यजीदियत को खिलौना बना के झूले में, अभी भी खेल रहा है हुसैन का असगर, बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर, हुसैनियत की बका है हुसैन का असगर, बड़े बड़ों से बड़ा है हुसैन का असगर। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। खुदावंद मुताल आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे, और आपका और आपके वालिद साहब का साथ हमेशा साथ रहे, और बुज़ुर्गों की सेहत और आफ़ियत के लिए भी दुआ गो हूँ। जल्द करबलाए मौला आएँ और इस मुक़द्दस महफ़िल के अंदर आपको यहीं पर दावत दी जाए। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। इस ज़िक्र का सदका दुनिया और आखिरत में आपको कुर्ब जवार अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब रहे। इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए अक़दस पर हाजिर होकर दुआ, ज़ियारत और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफ़तें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र मार्फत मोहब्बत उन्स व इश्क़ व मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खां सैयद अब्बास साहब मुंबई इंडिया से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और ये शराफ़त ज़िक्र आपके साथ हमेशा हमेशा पैवस्त रहे और इस शराफ़त को दुनिया में आम करते रहें। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। यकीनन ज़ाकिरीन अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम, मोहतरम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की निस्बत से हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारे हैं। इसी वजह से जहाँ कहीं पर भी ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम हो वहाँ पर मोमिनीन आँखें बिछाते हैं, पलकें बिछाते हैं। अपने घर की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए पेश की जा रही होती है और ये उनका शरफ़ ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से है। और इखलास अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिसने भी पेश किया, हम तो वैसे ही नौकर हैं, ताबे हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए। हम इत्तबा करने वाले हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की, अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत पर यकीन रखने वाले हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर अमल करने वाले और अमल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम तो जब करते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की इज़्ज़त, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद इज़्ज़त एहतराम करके दिखाई है ज़ाकिर की, और घर में बुला के उसे बुलंद मकाम पर बिठाया और ख़ुद मासूम अलैहिस्सलाम ने फ़र्श अज़ा पर बैठकर मजलिस को सुना है। लिहाजा कोशिश करने वाले कोशिश करते हैं और हम भी कोशिश करते रहते हैं। इस कोशिश को जारी रखना चाहिए, जारी रहना चाहिए। और ये कोशिशें हमारी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में पज़ीरुफ्ता हैं। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी रहेगा, जारी था और हम ना होंगे ज़िक्र होगा। अफसोस की बात होती है और ये बात सोचते हुए भी अफसोस होता है कि हम कभी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम ना कर सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा मनकबत खां मीर ज़ैनुल आबिदीन बुखारी साहब लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम।
جی بسم اللہ، وعلیکم السلام یا علی مدد، کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام مدد، کرم ہے مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں بین الحرمین، آپ کی ماشاء آواز اللہ گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے اس مودت بھری محفل کو چار چاند لگا دیجئے گا۔ بسم اللہ فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدحت محمد والے محمد کا ایک مرتبہ پھر سے موقع دیا۔ سلامت رہے مولا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سدا سلامت رکھے اور اس محنت کوشش کاوش کو بارگاہ عظیم میں قبول و مقبول فرمائے۔ الہی آمین۔ منقبت قبلہ پیش کرتا ہوں امام رضا کے حوالے سے، بسم اللہ، سماعت فرمائیے گا۔ عنایت فرمائیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعناجہم اجمعین۔ یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، آواز آنا شاید بند ہو گئی ہے، نیٹ کے اندر تعطل ہے بھائی کی طرف سے۔ جیسے ہی دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں بھائی، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ بہرحال دنیاوی ارتباطات کا حال تو یہی ہے، کہیں پر بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لہذا یقین ان کی ذات پر رکھنا چاہیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یقین محکم عنایت فرمایا، اور جن کے سبب سے دنیا کے اندر یقین اور استواری قائم ہے، جن کے سبب سے دنیا کے اندر دوام ہے، استمرار ہے، اور یہ لیل و نہار جاری و ساری رہتے ہیں، جن کے سبب سے انہی سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے مذہب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں۔ جس کسی کو بھی دیکھا جائے اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، سب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار نظر آئیں گے، اہل بیت علیہ السلام سے کمتر نظر آئیں گے، اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نظر آئیں گے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے امام ہو، یا اہل بیت علیہ السلام کا پیشوا ہو، یا اہل بیت علیہ السلام سے بہتر ہو۔ اہل بیت رسول سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے، اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد خمسہ آل ابا اور ان کا خانوادہ اور ان کی اولادیں ہیں۔ جی دوبارہ وصل ہو گئے ہیں جناب محترم میر زین العابدین بخاری صاحب لاہور سے۔ جی بسم اللہ فرمائیے گا۔ جی قبلہ منقبت سماعت فرمائیے گا، میں آغاز کرتا ہوں۔ جی عنایت۔ یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں، واہ، یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں، واہ، الہی ٹھہر جائے وقت کی رفتار مشہد میں، واہ، 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 یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا، ہر بار مشہد میں۔ واہ۔ اور بہت خوبصورت قبلہ اس منقبت کا مصرع سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں، واہ، جنازے تو بہت آتے ہوئے دیکھے مگر میں نے نہیں دیکھے کہیں بھی موت کے آثار مشہد میں، واہ، 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 نہیں دیکھے کہیں بھی موت کے آثار مشہد میں، واہ، رضا کے حور
حسن پر یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا واہ رضا کے حسن پر یوسف کو بکتے دیکھتی دنیا واہ اگر ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد میں واہ 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 اگر ہوتا کہیں جو مصر کا بازار مشہد میں واہ سنا کر منقبت مولا کی میں ان سے دعا لوں گا واہ ملیں گے جب کبھی بھی میسمیں تمار مشہد میں واہ 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 ملیں گے جب کبھی بھی میسمیں تمار مشہد میں اور بہت خوبصورت مصرع سنا ہے خود شفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا واہ سنا ہے خود شفا دینے کو آتے ہیں وہاں مولا واہ تو اب خود جا کے میں ہو جاؤں گا بیمار مشہد میں واہ واہ تو اب خود جا کے میں ہو جاؤں گا بیمار مشہد میں واہ وہ چاہے گھر کی صورت ہو یا چاہے قبر کی صورت واہ وہ چاہے گھر کی صورت ہو یا چاہے قبر کی صورت خدا بندہ بنا دے میر کا گھر بار مشہد میں واہ 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 یہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں واہ 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 الہی ٹھہر جائے وقت کی رفتار مشہد میں واہ واہ چوکھٹ چوم کر کی ہے دعا ہر بار مشہد میں واہ واہ اللہم صلی علی محمد خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ بہت پیارا کلام پڑھا،
मौला की बारगाह में तवस्सुल यकीनन मकबूल है। खुदावंद मुताल ऐसी मकबूल इबादतें बेहद व बेहिसा करने की सादत अता फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम की पैरवी और तासी के अंदर आप हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सबदा आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र मार्फत व मोहब्बत उन्स व इश्क व मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए नोहा मनकबत खां मीर ज़ैनुल आबिदीन बुखारी साहब लाहौर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का तवस्सुल हमेशा आपके साथ साथ रहे। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर आने के लिए दिल का इखलास शर्त है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हैसियत, सूरत, नस्ल, रंग, ज़बान को नहीं देखते बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इखलास को देखते हैं। इनकी बारगाह के अंदर जो भी दुनियावी एतबार से जितना भी पस्त हो लेकिन दीनी एतबार से अहले बैत अलैहिस्सलाम इखलास के सबब से इज़्ज़तों का ताज सर पे रख दिया करते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जिसने मुखलिसाना तौर पर आकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर को झुका लिया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने उसके सर को दुनिया और आखिरत के अंदर ऐसा बुलंद फरमाया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इज़्ज़तें अता फरमा देते हैं। जिस तरीके से आप देख लीजिए फुतरुस जिन्होंने एक फ़ख्र का जुमला कहा था जो तवारीख के अंदर मिलता है कि एक जुमला कहा था मम मिसली। क्या सबब था? जब जन्नत के अंदर परवाज़ की तो देखा कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला को ये तकब्बुर पसंद नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अनल मुतकब्बिर, मेरा खासा है कि मैं तकब्बुर कर सकता हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ, कोई दूसरा तकब्बुर नहीं कर सकता। वल मुहैमिन वल मुतकब्बिर, अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिर है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा ये दी कि अल्लाह के लक़ब में अल्लाह की सिफत के अंदर बराबरी करना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस तरीके से सज़ा दी कि उसे उसके आमाल की पादाश के अंदर एक घाटी के अंदर फेंक दिया। 700 750 साल या इससे भी ज़्यादा मुद्दत वहाँ पर रहा। अब जिब्राईल अमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त के ऊपर जब वहाँ से आने लगे तो देखा कि वहाँ पर फुतरुस मौजूद है। कहने लगा मुझे भी ले जाइए। तो जनाब फुतरुस को जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर पहुँचे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर ख़बर हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया जाए कि इसके गुनाह मुआफ़ किए जाएँ। पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला और अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर एक यकसानियत पाई जाती है। वो जो चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है और जो अल्लाह चाहता है वो चाहते हैं। वरना अल्लाह के दुदकारे हुए को बख्शिश दिलाना किसी आम इंसान के बस का रोग ही नहीं है, क्योंकि वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह के मिसदाक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर इज्जत दिलाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में 3 रिवायतें मिलती हैं। एक में लिखा कि पंघोड़े से मस किया गया, दूसरे में कहा मासूम अलैहिस्सलाम के वो कंदागा जिसे कहते हैं फारसी अरबी के अंदर वो कपड़ा होता है जिसके अंदर लपेटा जाता है बच्चे को। देखा होगा कुछ लोगों ने इराक में आए हों तो बच्चे को लपेट रखा होता है कपड़े के अंदर। और तीसरी रिवायत यह है कि मासूम अलैहिस्सलाम से मस किया गया, लेकिन पंघूड़े से मस करने का सबब यह बना कि उसे वो ताकत जो पहले मिली थी उससे कई गुना ज़्यादा ताकत मिल गई। अब इस दफ़ा जिब्राईल अमीन जब वापस पलटने लगे तो उसने सबसे पहले पीछे था, थोड़े से परों की परवाज़ को तेज़ किया। जो 70,000 मलाइका जिब्राईल के पीछे चल रहे थे सैयदुल मलाइका के पीछे, उनसे आगे बढ़ गया और अब थोड़ी सी मजीद ताकत लगाई तो जिब्राईल से भी आगे बढ़ गया। बाकी के सब बाद में हमारे साथी सब मौजूद हैं। शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम नोहा खां अली अब्बास अलवी साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वासलाम जी, आली मदद से मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सदाबाद रहे माशाअल्लाह। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से इस मुक़द्दस महफिल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो सर मैं करबला टीवी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। अजादारी एक छोटा सा अर्ज करूंगा, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल है जिसमें आप पढ़ रहे हैं और बैनुल हरमैन में हमारा स्टूडियो मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ पहुंचा रहा है। बिस्मिल्लाह। जी 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 जी, मैं नाम वो थोड़ा मुझे भूल हो गई। अच्छा, तो अभी मैं बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का एक मरसिया में आप लोगों को सुनाऊंगा। इनायत मुलायजा कीजिए। बिस्मिल्लाह। तुमने ज़हरा को
तुमने ज़हरा को रंजाया, हाय ये तुमने क्या किया, अल्लाह कलमा गो तुमको समझते थे, हाय बड़ा धोखा हुआ, हाय हाय तुमने ज़हरा को रंजाया, अल्लाह हाय ये तुमने क्या किया, अल्लाह तुमने ज़हरा को रंजाया, अल्लाह जिनको बाबा ने दिए थे लाड और लाखों नयन, अल्लाह जिनको बाबा ने दिए अल्लाह थे लाड और लाखों नयन, तुमने 9 घंटे उन्हें दरबार में किया क्यों खड़ा, हाय 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 कलमा गो तुमको समझते थे, हाय बड़ा धोखा हुआ, हाय हाय तुमने ज़रा को रंजाया, हाय ये तुमने क्या किया, हाय हाय तुमने ज़हरा को रंजाया, हाय हाय आप तो कहलाते थे हाय हैं जान सारे मुस्तफा, हाय हाय आप तो कहलाते थे हैं जान सारे मुस्तफा, हाय तुमने बीबी फातिमा को क्यों दरबार से जुठला दिया, हाय कलमा गो तुमको समझते थे, बड़ा धोखा हुआ, हाय हाय तुमने लहरा को रंजाया, अल्लाह आप तो
सारे मुस्तफा तुमने बीबी फातिमा को क्यों दरबार से जुटला दिया कलमा गो तुमको समझते थे बड़ा धोखा हुआ तुमने ज़हरा को रंजाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फरजहुम। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का मरसिया पढ़ा। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बरकतें आपके शामिल हाल रहेंगी। इस ज़िक्र का सदका जल्द करबलाए मौला की बारगाह में पहुंचकर हदिया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी व सारी रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें। ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क व उन्स व मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम व नोहा खां अली अब्बास अलवी साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। गो के वक्त आखिर चल रहा है। जो मैसेजेस बचे हैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस पहले लिखे हुए आ रहे थे, पता नहीं लिखने वालों ने मिटाए हैं, कुछ हुआ है वो नहीं आ रहे। लिहाजा अम्बरीन साहिबा थी, कुछ उनके भी मैसेजेस थे। खुदावंद मुताल उनकी भी दुआएं कबूल फरमाए। और जामिन अली भट्टी साहब ने लिखा सलाम अलल हुसैन, फिर लिखा सलाम या बाबुल हवाइज, फिर लिखा सलाम या इमाम असर अलैहिस्सलाम, फिर लिखा माशाअल्लाह, फिर लिखा सलाम या मजलूमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, और फिर लिखा अस्सलाम अलल हुसैन, फिर लिखा सलाम या अबा अब्दुल्ला, फिर लिखा सलाम या इमाम असर अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह, सलाम या मजलूमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। मौला आपकी ये ज़ियारतें, ये सलाम कबूल फरमाए और आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें। यकीनन जो तवस्सुल करते हैं मौला की बारगाह में, आपके मैसेजेस जो हम तक पहुँचते हैं, कोशिश यही होती है कि मौला की बारगाह में पेश किए जाएँ और आपकी दुआएँ मौला की बारगाह में पढ़ दी जाएँ। यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुल के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कुर्ब और इमाम अलैहिस्सलाम और करबलाए मौला, इनसे निस्बतों की सबब से आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हम इस चीज़ को अल्लाह ताला की इनायत समझते हैं और इसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़िक्र में शामिल हैं। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हमसे नहीं बल्कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हैं। शुक्र करना चाहिए इस नेमत का। जो दोस्तान शरीक हुए उन सब का भी शुक्रिया, जो देखते रहे उनका भी शुक्रिया, जो हमारे साथ मुआविन हैं इन सब का शुक्रिया। और बैनुल हरमैन में बैठ के आप सब की तमाम दुआओं की कबूलियत की दुआ के साथ साथ आए मिलकर मोहब्बतों भरा नजराना हुज्जत खुदा की बारगाह में पेश करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज।